Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shivjyoti Educational Group. So, class, come to the chapter number 3, that is current and electricity. First of all, what is the electric current? This is the rate of flow of electric charge. It is called the electric current. The formula is I equals to Q upon T. Now, electric current in a conductor. Okay, so conductor. First of all, हम conductor के बारे में देखते हैं. The free electrons are found in the conductor. The electric current in the conductor is due to the free electrons. Remember one thing, conductor के अंदर जो electric current flow होता है बच्चों वो free electrons की वजह से होता है. Electrolytes की बात करते हैं. The current in the electrolytes is due to the flow of ions. And come to the semiconductor. The current in the semiconductor is due to the flow of both holes and electrons. Now come to the Ohm's law. Okay, the statement of Ohm's law is what? At constant temperature, the current through a conductor is directly proportional to what? Is directly proportional to the difference between the potential, between the ends of the, between the potential difference between the end points. Okay, now you can say that V is directly proportional to I. So that V equals to Ri, where R is what? This is the constant, it is called the resistance of the material. Now factors on which the resistance of the conductor or resistance of the material depends. Okay, for a given material, the resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section. It means we can say that R is directly proportional to L upon A. अगर हम directly proportional के साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा R equals to rho L upon A. Now rho is what? This is the constant proportionality and it is called the resistivity of the material. Now students, बात करते हैं resistivity की. Okay, now the resistance per unit length for a unit area cross section will be a constant and this constant is known as the resistivity of the material. Particular किसी material की resistivity constant रहेगी लेकिन material हम change करेंगे, even temperature भी change करेंगे तो resistivity की value पे भी effect पड़ेगा. The resistivity or the coefficient of specific resistance is defined as the resistance offered by the resistors of unit length and unit area of cross section. ओके, इट मीन्स अगर आप यहाँ पे रो को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर हम ए को यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें और एल को यूनिट लेंथ ले लें तो रो विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज द रेजिस्टेंस. जब हमने ए को कितना लिया बेटा? 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को कितना लिया बच्चा? 1 मीटर. सो रेजिस्टिविटी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट विल बी ओम मीटर. नाउ कम टू द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. जिस तरीके से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है उसी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस and the reciprocal of resistivity is called the conductivity. Now the SI unit of the conductance is Siemens and that of the conductivity is Siemens per meter. The unit of conductance can also be expressed as per ohm. हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो कंडक्टेंस की यूनिट पर ओम हो जाएगी. करंट डेंसिटी. The current per unit area is called the current density. The symbol of the current density is this J. It means J equals to I upon A. Now the vector form of current density, or we can say the current can be represented in terms of current density and area. We already know that current density equals to I upon A. So I equals to what? That is J into A. Okay, so this will be your current formula in terms of current density. Now the mathematical expression of Ohm's law in terms of I and E. Consider a conductor of length L and let V be the potential difference between the two ends of the conductor. Now we know that V equals to I into R. Now V equals to I rho L upon A because R equals to rho L upon A. So V equals to J rho L, where J is what? This is your current density, rho is resistivity and L is the length. This potential difference produces an electric field E in the conductor and the potential difference across the conductor also can be written as V equals to E into I. Now compare equation number 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चों. तो दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई आई इक्वल्स टू जे रो एल. तो आई से बच्चों आई कट हो जाएगा, बचेगा क्या? ई इक्वल्स टू जे ऑफ रो. ओके, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर वी कैन राइट डाउन ई इक्वल्स टू जे रो. सो जे इक्वल्स टू ई अपॉन रो. नाउ यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला.
Now J equal to sigma into E, where sigma is what? This is, you can say, 1 upon rho. Okay, और 1 upon rho is what? Your conductivity, or you can say the conductance. Okay, आपने जब conductivity और conductance को पढ़ा था बच्चों, तो हमें मालूम था उस केस में जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आई थी उसका रेसिप्रोकल जो था बच्चों वो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी थी। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टिविटी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वेयर सिग्मा इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। Now come to the drift of electron and the origin of the resistivity. Resistivity का origin कैसे होता है और drift of electron क्या होता है? Now the random thermal motion of electron in a metal. किसी भी metal में जो electrons होते हैं वो randomly move करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती जब तक उसके ऊपर potential difference अप्लाई नहीं किया जाए। Every metal has a large number of free electrons which are in the state of random motion, और सारे के सारे बच्चों random motion करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं within the conductor. The average thermal speed of the free electron in random motion is of the order of 10 to the power 5 meter per second, very large amount. The direction of the thermal motion are so randomly distributed, that's why the current due to the thermal motion will be zero. क्योंकि सारे के सारे चार्जेस जो है बच्चों वो रेंडमली की सारी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो नेट करंट हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ कम टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर की है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ कम टू द रिलैक्सेशन टाइम। The relaxation time is the average of time between the two successive collision of the free electrons with the atoms. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के वो जब सक्सेसिव कॉलिजन करते हैं तो उनके बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। नाउ कम टू द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। नाउ लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स of the conductor and this potential difference make an electric field. potential difference की वजह से यहाँ पे कितना बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है? that is capital E. under the influence of the electric field E, each free electron experience a coulomb force. सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर एक कूलम फोर्स लगेगा। किसकी वजह से बच्चों? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नाउ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स दैट इज F इक्वल्स टू माइनस E अपॉन E, और वी कैन से दैट F इक्वल्स टू M इनटू A, इट मींस MA इक्वल्स टू माइनस E इनटू कैपिटल E. सो स्टूडेंट्स come to the A will be equals to minus E into capital E upon M. Now due to this acceleration the free electrons acquires an additional velocity. जो free electron है उसको इस acceleration की वजह से additional velocity मिल जाएगी। A metal contain a large number of such free electrons, और metal के अंदर तो बहुत सारे free electrons available होते हैं। For first electron the additional velocity acquired in the time tau. जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एडिशनल वेलोसिटी उसको अचीव हो रही है वो कितने टाइम में अचीव हो रही है? टो टाइम में। सो वी नो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. सो बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट डाउन v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at tau. नाउ वेयर u1 is what? u1 is what? This is the thermal velocity and tau is the relaxation time. Similarly, the net velocity of the second and third electron will be equals to v2 equals to u2 plus at tau. Similarly, v3 equals to u3 plus at tau 3. Now the average velocity of all the n electron will be, हम क्या करेंगे बच्चों? सबका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। So it will be u1 at tau t1 plus u2 plus at tau 2 plus un up to un at tau n डिवाइडेड बाय n। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n प्लस a ब्रैकेट स्टार्ट tau 1 प्लस tau 2 अप टू tau n डिवाइडेड बाय n. सो v एवरेज इक्वल्स टू 0 प्लस a tau. Why it is 0? Because the average thermal velocity of the electron is 0. Okay? हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होती है बच्चों? वो 0 होती है। वेयर टो इज tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n डिवाइडेड बाय n, वेयर v एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द एक्सटर्नल फील्ड।
and this average field velocity is called the drift velocity. Okay, I hope you got the point that what is the drift velocity. It means drift velocity vd equals to a into tau, यानी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो जो वेलोसिटी आएगी इट विल बी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ vd इक्वल्स टू, वी ऑलरेडी नो द एक्सेलरेशन that is equals to minus of e into e upon m and the tau, यहाँ पे टो की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है. सो vd कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ e इंटू कैपिटल E इंटू टो डिवाइडेड बाय m. नाउ कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यू कैन से द ड्रिफ्ट स्पीड. वी हैव टू कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a and n be the number of electrons per unit volume. Now, when a voltage is applied across a conductor, a electric field is developed. जब voltage apply करेंगे तो electric field develop होगा, and let vd be the drift velocity of electron due to this field. और वहां पे जो drift velocity achieve होगी, that will be the vd. Now the total volume pass in per unit in unit time will be equals to a into vd, where a is area of cross section and vd is the drift velocity. Now the total number of electron in this volume equals to a into vd into n. Now the total charge flowing in unit time, that is equals to a into vd into n into e. But the charge flowing per unit time is called the current I, that is I equals to a into vd into n into e. Okay. Now the current density J can be written as J equals to I upon A. So this is J equals to, हम लोग को क्या करना है बच्चों, इस क्वांटिटी को A से डिवाइड कर देना है, तो we will get NEVD. A तो बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब A से डिवाइड करेंगे. So the deduction of Ohm's law. Now come to the next topic, that is the deduction of Ohm's law in the vector form. So we know that the current density equals to J equals to N into VD into E. So this is the vector quantity. So J equals to N into E upon M into tau into E. Okay. Now इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर, ई से ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इनटू टो ऑफ ई. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट J इक्वल्स टू सिग्मा ई. ओके, पहले वाले स्लाइड में हमने ऑलरेडी देख लिया कि J का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा इनटू ई. सो we can compare these two equations. We get the sigma equals to n e square into tau divided by m. Now come to the very important topic, that is what is the mobility. Mobility is defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field. जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है जिसको हमने vd से रिप्रेजेंट किया है, उसका मैग्नीट्यूड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज द मोबिलिटी. So come to the mathematical part. Mobility is represented by the symbol mu. It will be Vd upon E. Now mu equals to Vd. Vd की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, तो it will be E tau into capital E upon M. और यहाँ पे E यहाँ पे आ गया, तो इस E से बच्चों ये E कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, mu equals to E tau upon M. This is the formula of the mobility. Now student, there are some limitations in Ohm's law. Okay, first, certain material do not obey the Ohm's law. सारे के सारे materials जो होते हैं वो Ohm's law को strictly follow नहीं करते हैं. The deviation in Ohm's law are of the following type. जो deviation होते हैं वो इस टाइप के हैं, देखते हैं. First of all, V stops to be the V proportional to the I. Okay, हम देखते हैं कि V और I का ग्राफ किस तरीके से deviate करता है. अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो it will be the straight line. बट यहाँ पे इस तरीके से डेविएशन देखने को हमें मिलता है. ओके, वो बिल्कुल आई के प्रोपोर्शनल नहीं होता. नाउ बात करते हैं डायोड की. द डायोड शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट फॉर द सेम नेगेटिव एंड द पॉजिटिव वोल्टेज. आप देख सकते हैं डायोड में आप पॉजिटिव वोल्टेज को कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू इस तरीके से वेरी कर रही है. नाउ दिस इज फॉर द डायोड. Now this type of behavior is shown by the material like gallium arsenide. There is more than the value of V for the same value of the current. एक करंट के लिए V की अलग अलग वैल्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी. So this is the current line, this is the voltage axis. Okay, you can see here कि यहाँ पे this is the non-linear है, this is the linear region. Okay, this is what, this is the linear region. यहाँ पे कर्व आ रहा है बच्चों, इट मींस यू कैन से दिस इज द नॉन लीनियर रीजन, और यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब कि स्लोप डाउन हो रहा है. ओके, तो यू कैन से कि यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हो गया. ओके, इट मींस यू कैन से फॉर द पर्टिकुलर करंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस करंट पे आपके पास वोल्टेज की दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है. ओके,
I hope you got this point. Now, the material which do not obey the Ohm's law are mainly used in the electronics. Okay, the resistivity of the various material. The material are classified as a conductor, semiconductor, and insulator according to their resistivity property. Now, commercially produced resistor are of two type. दो type के resistors होते हैं commercially. First one is the wire bound resistor. Second one is the carbon resistor. Carbon resistors आपके कोर्स में से बिल्कुल डिलीट कर दिया गया. Now come to the wire bound resistor. Okay, the wire bound resistor are made by the winding the wires of an alloy. Example की बात करें तो मैग्नीशियम and nichrome. These are the example of the wire bound resistor. Come to the temperature dependency of the resistivity. This is again a very important topic. The resistivity of the material is found to be dependent on the temperature. जो resistivity होती है बच्चों वो temperature पे depend करती है. अब किस formula से depend करती है, क्या relationship होता है? This is the relationship by which you can find out the resistivity in terms of temperature. You have to learn this formula. Okay. Now in this formula, rho T is the resistivity at temperature T and rho naught is the resistivity at the temperature T naught. Now alpha is called the temperature coefficient of the resistivity. Now variation of resistivity in metals. हम मेटल्स देखेंगे फिर सेमीकंडक्टर देखेंगे. ओके तो पहले हम मेटल में देखते हैं कि मेटल में रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से होता है. यू कैन सी हियर दिस इज द रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस. यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दिस इज द कर्व, बट टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टिविटी भी बच्चों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. लीनियर फॉर्म में नहीं हो रही है बट इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी with respect to the temperature. Now students, for the semiconductor, the graph between the resistivity and the temperature you can see here. आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है. नाउ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है. This means that the resistivity decreases with an increase in temperature and the variation of resistivity with temperature for the semiconductor is shown in the above figure, this figure. Now example की बात करें कार्बन, germanium, silicon, this is the example of semiconductor. Now come to the variation of the resistivity in the standard resistors. Now for the standard resistor, we can see the graph between the resistivity and the temperature. Now standard resistor, the variation of the resistivity will be very little with the temperature. अगर आपके पास कोई standard resistor है तो उसके अंदर resistivity का variation या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि resistivity की temperature dependency बहुत ही कम होगी. और अगर रेजिस्टिविटी वेरी भी करेगा तो वो बहुत ही कम अमाउंट में वेरी करेगा टेम्परेचर के वेरी होने के साथ. द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर फॉर द स्टैंडर्ड रेजिस्टर इज शोन हियर. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम वेरिएशन आ रहा है. एग्जांपल की बात करें तो कांस्टेंटाइन एंड मैग्नेटिक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टर. नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी. नाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय हियर the formula, that is rho equals to 1 upon sigma, that is equals to m upon n square upon tau. You know what is the tau? Tau is the relaxation time again. The above equation show the resistivity depends inversely on the number density and relaxation time. यानी number density के और relaxation time के ये inversely proportional होता है. Now come to the metals. The resistivity of a metal increase with the temperature. जो अभी हमने पहले ग्राफ में भी देखा कि रेजिस्टिविटी है जो बच्चों मेटल की वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है. ओके और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद द टेम्परेचर. नाउ कम टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. यू कैन सी हियर we have considered the 2 points A and B. The potential difference is V and the current flow is I. The potential at point A is denoted by VA and the potential at point B is denoted by VB here. Now we have to consider the potential at A is greater than the potential at B. Okay. Now if del Q is the charge flow from A to B, A से लेकर B की तरफ जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, डेल Q से. कितने टाइम में जा रहा है बच्चों, ये डेल T टाइम में. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल बी डिक्रीज. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होती जाएगी. द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्ज फ्लो फ्रॉम A टू B. और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जो डिक्रीज इन पोटेंशियल है दैट विल बी VA डेल Q माइनस VB डेल Q, दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB. अब यहाँ पे बच्चों डेल Q कॉमन आ रहा है तो डेल Q कॉमन ले लेना, तो हमारे पास बचेगा क्या, VA माइनस VB. सो V डेल Q
ब्रैकेट स्टार्ट वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पे वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा बच्चों, वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो वी ए माइनस वी बी आ रहा है इसको हमें किससे रिप्लेस करना है, वी से, तो फॉर्मूला हो जाएगा वी इंटू डेल क्यू। नाउ स्टूडेंट्स, दिस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं तो अपीयर होगी, तो किसकी फॉर्म में अपीयर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग चार्जेस, बट वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स डू नॉट इंक्रीज ड्यू टू द कोलिजन विद द एटम्स। नाउ ड्यूरिंग द कोलिजन the kinetic energy gained by the charge carriers is shared with the atom, and hence the atom vibrate more vigorously, that is the conductor heats up according to the conservation of energy, heat develop in between the A and B in time what, in time del T. Now come to the del H. Del H is the decrease in the potential energy, ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डेल एच से। नाउ वी ऑलरेडी नो द डेल एच इक्वल्स टू वी डेल क्यू, ओके, so we have already heard the formula, that is V equals to W upon Q, okay, so W is what, here W is the del H and Q is the charge, so del H equals to V into del Q, so del H equals to V, यहाँ पे del Q की वैल्यू पुट कर देना, that is I into del T, तो ये हो जाएगा V into I del T। नाउ यहाँ पे जो del T है बच्चों, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना बच्चों, तो del H upon del T that will be equals to VI, और VI की बात करें तो VI तो ऑलरेडी क्या होती है बच्चों, पावर होती है, तो पावर यू कैन से दैट इज योर del H upon del P। बाय यूजिंग द ओम्स लॉ वी कैन से दैट V equals to IR, okay, so put the value, we get the P equals to I square into R, and again by using Ohm's law we can write down one more formula of power, that is P equals to I square into R and P equals to V square into R। now it is the power which heats up the conductor, ये वो पावर है जो कि कंडक्टर को हीट अप कर रहा है। now come to the power transmission, the electric power from the electric power station is transmitted with the high voltage, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो हम इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करते हैं वो हाई वोल्टेज के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, एंड व्हेन वोल्टेज इंक्रीज द करंट डिक्रीजेज, और जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है तो करंट बहुत कम होगा, हैंस हीट लॉस डिक्रीजेज वेरी मच, जिसकी वजह से हीट लॉस बहुत कम हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द इलेक्ट्रोलाइटिक cell. An electrolytic cell is a simple device which is used for the steady current in an electric circuit. A cell has two electrodes, electrolytic cell में दो electrodes होते हैं, they are immersed in a electrolytic solution, और electrolytic solution में जो charge carrier flow होते हैं बच्चों क्या होते हैं, ions होते हैं। Now come to the EMF, that what is the EMF? Basically बच्चों ये words और ये terms use में आने वाली इस chapter में, इसलिए हम इन terms को एक एक करके study कर रहे हैं। So EMF is the potential difference between the positive and negative electrodes in an open circuit। ओपन सर्किट में ध्यान रखना, इन्हें ओपन सर्किट बात कर रहा हूं मैं, तो ओपन सर्किट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द ईएमएफ, ओके, दैट इज व्हेन नो करंट इन फ्लोइंग थ्रू द सेल, यानी जब सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में जो उसका दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द ईएमएफ। नाउ कम टू द वोल्टेज, वोल्टेज इज अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस between the positive and negative electrodes, but when current flow through it, ध्यान रखना वोल्टेज की बात हम तब करेंगे जब करंट फ्लो हो रहा है, और ईएमएफ की बात हम तब करेंगे जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नाउ कम टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ओके, द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर अ फाइनाइट रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बच्चों वो करंट फ्लो को एक फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब बहुत ही कम अमाउंट होता है इसका। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय द स्मॉल r। नाउ कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ, वोल्टेज एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल ड्रॉप। नाउ कंसीडर अ सर्किट इन व्हिच द सेल ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस r and let small r be the internal resistance and capital I with the current flowing through the circuit. Now according to Ohm's law, now current flowing through the circuit, that is I equals to total EMF upon total resistance, okay, it will be I equals to EMF, that is E total resistance capital R plus internal resistance, so E equals to IR plus I small r, so E equals to V plus IR, because we already know that V equals to IR, so हमने V को IR को V से रिप्लेस कर दिया। Now V is the voltage across the resistance called the terminal voltage and IR is the
potential difference across the internal resistance, that is called the internal drop. Now student, next topic, cells in series and parallel. पहले हम बात करते हैं सीरीज में। तो आपने देखा होगा यहाँ पे डायग्राम में दो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका EMF E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, दोनों के बीच में जो गैप है जिसको मैंने B से डिनोट किया है, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो हो रही है जिसको मैंने I से डिनोट किया हुआ है। नाउ कंसीडर द टू सेल इन सीरीज, लेट E1 एंड R1 बी द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सिमिलरली E2 और R2 भी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएंगे सेल के। लेट I विल बी द करंट इन द सर्किट। फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हम देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B के बीच में, नाउ दिस इज द पॉइंट A एंड अनदर वन इज द पॉइंट B, तो पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल, देखो दिस वन इज द पॉइंट A एंड दिस कैन बी रिटन एज द पॉइंट B एंड दिस इज योर C, ये C हो जाएगा। सो इट इज A, इट इज B एंड इट इज C। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 माइनस I R1। नाउ सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, अब हम B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। सो इट विल बी इक्वल्स टू VB माइनस VC इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। अब हमें क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बट बिटवीन द टर्मिनल A एंड C। सो वी कैन राइट डाउन VAC इक्वल्स टू VA माइनस VC। अब हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे B को प्लस माइनस कर देंगे, ओके, तो इट विल बी VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ VA माइनस VB, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ VB माइनस VC। यहां से पुट करो बच्चों, ओके, सो वी गेट VAC इक्वल्स टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। नाउ after substituting we get the formula VAC, that is equals to E equivalent minus of IR equivalent, where E equivalent equals to E1 plus E2। it means सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सेल है तो उनके जो EMF होंगे बच्चों वो एल्जेब्रिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेट EMF फाइंड आउट करने के लिए हम उसके EMF को क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। नाउ द रूल फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के अब रूल्स क्या है, डेरिवेशन कर लिया, अब कुछ रूल्स देखते हैं। द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N सेल इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल EMF, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस of the series combination of N cell is just the sum of their internal resistance। okay, जो internal resistance का जो हर एक सेल के internal resistance का अगर हम सम करेंगे तो हमें net internal resistance मिल जाएगा, बट किस में बच्चों, series combination में। now come to the cells in पैरेलल, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने टू सेल्स यूज किए हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। एक सेल से I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी सेल से I2 करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज B1 पॉइंट, दिस इज योर B2 पॉइंट। द इंटरनल रेजिस्टेंस आर R1 एंड R2 एंड EMF इज E1 एंड E2। नाउ द टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सेल इज द सम ऑफ I1 एंड I2, सो I इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज I1 प्लस I2। नाउ लेट VB एंड VB2 बी द पोटेंशियल एट B1। ओके, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको हमने VB1 से डिनोट किया है और B2 पे जो पोटेंशियल है उसको VB2 से डिनोट किया है। नाउ कंसीडर द फर्स्ट सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2। ओके, सिर्फ हमें अभी देखो एक एक सेल की बात करेंगे हम लोग, पहले सिर्फ फर्स्ट सेल कंसीडर करेंगे, सेकंड को कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम सेकंड को कंसीडर करेंगे, फर्स्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब हम सिर्फ फर्स्ट को कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन B1 एंड B2, बिटवीन दिस टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 इंटू R1। ना बच्चों, तो यहां पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो I1 का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज I1 माइनस V अपॉन R1। अगर सिमिलरली हम सेकंड सेल को कंसीडर करते हैं, जैसे यहां पे हमने सिर्फ सेकंड सेल को कंसीडर किया, तो यहां पे I2 का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज E2 माइनस V अपॉन R2। ना स्टूडेंट्स, जो हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाली है, उन I1 और I2 की वैल्यू को I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी गेट द इक्वेशन I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 माइनस I ब्रैकेट स्टार्ट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स,
इफ वी रिप्लेस द कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल, जो हमारे पूरा फॉर्मूला है, अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर हम सिंगल सेल से रिप्लेस कर, जैसे दो सेल थे, दोनों सेल को अगर हम सिंगल सेल से रिप्लेस कर रहे हैं, ओके, बिटवीन B1 एंड B2 ऑफ द EMF E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। अब हमें करना है क्या बच्चों, इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करना है। तो हमारे पास जो V इक्विवेलेंट की या फिर सॉरी E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी दिस वन, दिस इज योर E इक्विवेलेंट। सिमिलरली जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आपकी यहां से आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो द अबव इक्वेशन कैन पुट इन द सिंपल वे। अगर इस इक्वेशन को हम सिंपल वे में देखें तो हम कह सकते हैं दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इफ देयर आर n सेल्स, यहाँ पे चलो ठीक है हमने 2 सेल्स लिए थे, अगर n सेल्स होते हैं तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। सिमिलरली E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अप टू En अपॉन Rn। Now students, come to the some important rules. First of all, Kirchhoff rules. Okay, इसमें first rule है the first law of junction rule. The total current entering the junction is equal to the total current leaving the junction. This is the junction point. Okay, तो जितना current enter हो रहा है बच्चों, उतना ही current बाहर निकलेगा. It means I1 plus I2 will be equals to I3 plus I4 plus I5. Now come to the second rule which is also known as the loop rule. First rule को हम junction rule बोलते हैं, second rule को हम loop rule बोलेंगे. In any closed circuit, the algebraic sum of the product of the current and the resistance in each branch of the circuit that is equal to the net EMF of that branch. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, the total EMF in a closed circuit is equal to the sum of the voltage drop. अच्छा, इस लूप को या फिर इस लॉ को समझने के लिए इस सर्किट डायग्राम को हम देखते हैं। हमने यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स, ओके, दोनों को सेल्स इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, R1 को E1 से, R2 को E2 से, और दिस इज योर अनदर रेजिस्टर, दिस इज R3। ओके, अब इसके अंदर किस तरीके से हम लूप लॉ लगाएंगे, जंक्शन रूल कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। Now, applying the second law of the closed circuit, A, B, C, D, E1A. Okay, this is A, B, C, D, E1A. तो इस वाले में लगाना बच्चों। Okay, so that is equals to minus of I3 R3 plus E1 minus of I1 R1, that is equals to 0. अगर इसी तरीके से हम दूसरे सर्किट के लिए जो कि A, B, C, D, E2A इसके लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी that will be equals to minus of I2 R2 plus of minus I3 R3 plus E2, that will be equals to 0. Okay, and similarly minus of I1 R1 plus I2 R2 plus of minus E2 plus E1, that is equals to 0. Okay, now we have to note that the voltage drop in the direction of the current is taken as a negative. Okay, and the second thing जो हमें ध्यान रखनी है, EMF is taken as positive if we go the negative to the positive terminal. अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो हमें EMF क्या लेना है बच्चों, पॉजिटिव लेना है। Now come to the next heading, that is the Wheatstone bridge. Now 4 resistors P, Q, R and S are connected in the as shown in the diagram which is given below. Now the voltage V is applied in between A and C. Okay, so this is A, this is C. इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है V से डिनोट किया है. Let I1, I2, I3 and I4 with the 4 current passing through the P, Q, R, S. P, Q और R और S से जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसको हमने डिनोट किया है I1, I2, I3 और I4 से. Now come to the working. When key is closed, जब इस की को हम क्लोज करते हैं, okay, so current flow in a different branches as shown in the under this situation. तो current flow होगा वो किस सिचुएशन में कैसे फ्लो होगा देखते हैं. The voltage across P, अगर हम P की बात करें तो P में जो वोल्टेज लगेगा that will be denoted by VAB and that is equals to I1 into P. Similarly the voltage at Q that is denoted by VBC and that is equals to I3 into Q. It is represented by equation number 1.
सिमिलरली आर के अक्रॉस, सिमिलरली हमने एस के अक्रॉस भी वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया. नाउ द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेड टू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर. हमें क्या करना है बच्चों, आर की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर में बच्चों कितना डिफ्लेक्शन हो, बिल्कुल जीरो, यानी गैल्वानोमीटर की तरह कोई गैल्वानोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो ना हो. तो उस केस में क्या होगा बच्चों, I1 इक्वल्स टू I3 हो जाएगा. जब गैल्वानोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो I1 इक्वल्स टू I3 हो जाएगा और I2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I4 के इक्वल. तो जो आपने I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू फाइंड आउट की थी उनको इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देना. नाउ यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप ABDA एंड लूप BCDB, हमें क्या मिलेगा बच्चों, VAB इक्वल्स टू VAD एंड VBC इक्वल्स टू VDC. ना हमें क्या करना है, इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में. तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, I1P इक्वल्स टू I2R एंड I3Q इक्वल्स टू I4S. अब हम दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने से हमारे पास एक रिलेशनशिप आएगी, दैट इज P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज. Now since I1 equals to I3 and I2 equals to I4, so this is called the Wheatstone condition. Okay, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है what is the Wheatstone condition, तो you have to draw the diagram or say that I1 equals to I3 and I2 equals to I4. This is the Wheatstone condition. Next one is the meter bridge. Okay, now uses की बात करें, meter bridge is used for the measure of unknown resistance and the principle is it works on the principle of Wheatstone bridge condition. That is P upon Q that is equals to R upon S. Now student, this is the diagram of the meter bridge. अगर हम सर्किट की बात करें तो unknown resistance X. Okay, this is the unknown resistance is connected between the A and B. Okay, this is the whole A. Okay, ये पूरा पूरा A है, तो इसको A और B के बीच में हमने unknown resistance कनेक्ट कर रखा है. The non resistance box is connected in between B and C. जो ये resistance box है इसको हमने B और C के बीच में कनेक्ट कर रखा है. Now the voltage is applied between A and C and A is 100 सेंटीमीटर वायर इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C. ओके, यहां से लेकर यहां तक जो वायर हमने कनेक्ट कर रखा है इसकी लेंथ है बच्चों 100 सेंटीमीटर और हमने क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज अप्लाई कर दिया. नाउ लेट R बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. अगर सपोज करो हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल r, ना जो कि इज कनेक्टेड टू B थ्रू अ गैल्वानोमीटर. ओके, जो यहाँ पे दिस इज द जोकी वायर. ओके, इसको हमने B से कनेक्ट कर रखा है और इसको हमने बीच में गैल्वानोमीटर भी लगा रखा है. ना वर्किंग की बात करते हैं. ओके, अ सुइटेबल रेजिस्टेंस R इज टेकन इन द बॉक्स. ओके, ये जो R है इसका हम सुइटेबल वैल्यू लेते हैं, फिक्स वैल्यू ले लेते हैं. ओके, एंड द पोजीशन ऑफ द जोकी इज एडजस्टेड टू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन. और इस जोकी को हम इस तरीके से मूव करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए. ओके, सो होता क्या है, इफ I इज द बैलेंस लेंथ फ्रॉम A यूजिंग द व्हीटस्टोन कंडीशन. अगर I जो है बच्चों वो बैलेंस लेंथ है. ओके, सपोज L बी द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम A यूजिंग द व्हीटस्टोन कंडीशन. L क्या है बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ है. ओके, जिसको हम कहां से मेजर कर रहे हैं, ऐसे. तो अगर हम व्हीटस्टोन कंडीशन अप्लाई करते हैं तो x अपॉन r इक्वल्स टू LR अपॉन 100 माइनस L इंटू R. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी RL अपॉन 100 माइनस L. ना अगर हमें R की और I की वैल्यू मालूम है, R की और L की वैल्यू मालूम है तो हम लोग यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. बस हमें वैल्यू वहां पे पुट करनी है. ना कम टू द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. अगर हमारे पास कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है तो उससे रेजिस्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला रो इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इनटू 1 अपॉन L. ओके, सो दैट इज x अपॉन L. उसमें जहां r की वैल्यू क्या थी, इट इज मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज एंड L is the length of wire is measured using the meter scale. Now the meter bridge is most sensitive when all the four resistors are of the same order. Okay, now come to the next, that is the potentiometer. Okay, potentiometer में हम दो चीजें देखेंगे. First, comparison of the EMF of two cells using the potentiometer. So this is the diagram for comparing the two EMF of the cell by using the potentiometer concept. If we talk about the principle, the potential difference between the 2 points of a current carrying conductor having a uniform thickness is directly proportional to the length of the wire between the 2 points.
ओके एंड द सेकंड कम टू द सर्किट डिटेल, दिस इज द सर्किट, इसके डिटेल्स को देखते हैं बच्चों। अब बैटरी B1, ओके दिस इज योर B1 बैटरी and the rheostat and key are connected in between the A and B, okay तो A और B के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, rheostat कनेक्ट कर रखा है, की कनेक्ट कर रखा है। The circuit is called the primary circuit, the positive end of the E1, okay यहाँ पे E1 है बच्चों, okay the positive end of the E1 and the E2 are connected to A and the other end are connected to the two-way key, okay तो ये आपका two-way key है बच्चों, this one is the your two-way key, this one is hold, okay now a jockey is connected to the two-way key through a galvanometer, हमने वापस से jockey को किससे कनेक्ट कर रखा है, two-way key से, बट किसके थ्रू, galvanometer के थ्रू। this circuit is called the secondary circuit, इस सर्किट को हम secondary circuit बोलेंगे बच्चों। Now come to the measurement of internal resistance using the potentiometer, प्रिंसिपल की बात करते हैं पहले। the potential difference between the 2 points of a current carrying conductor having a uniform thickness is directly proportional to the length of the wire and between the 2 points. Now come to the circuit details, की circuit details देख लेते हैं। बैटरी B1, rheostat and K1 is connected in between A and B, तो A और B के बीच में हमने बैटरी, rheostat और स्विच को कनेक्ट कर रखा है। Now the circuit is called the primary, इस सर्किट को हम बच्चे बोलेंगे क्या, प्राइमरी पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। Now in the secondary circuit, E is having the internal resistance R that is connected and a resistance box R is connected across the battery through a key K2. Now the jockey is connected to a battery through a galvanometer, jockey को हमेशा बैटरी से मतलब galvanometer के थ्रू कनेक्ट करना है। Now working and theory, the key K1 in the primary circuit is closed and the key in secondary, that is K2, is open. Now jockey is moved to get the zero deflection in what, in the galvanometer. The balancing length L1 from A is found out and then we can write that E1 is directly proportional to L1. Similarly अगर हम K2 को क्लोज करते हैं तो हमारे को जो मिलेगा बच्चों, V1 is directly proportional to L1. Now V is the voltage across the resistance box. So the voltage across the resistance, that will be V equals to ER upon R plus R. Now we have to substitute equation number 3 in equation number 2. It means इसको इसमें हमें substitute कर देना है. So we get ER upon R plus R, that is directly proportional to your L2. Now equation number 1 और equation number 4 को हम divide करते हैं. तो जब हम divide करेंगे, so we get small r that is equals to capital R bracket start L1 minus L2 divided by L2. So student, this is your chapter number 3, current electricity. ओके, आई होप चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखना और एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना।